بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم ماضی معروف کی گردان اور اس کے صیغوں کو سیکھ چکے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد اس کی مشق حل کر چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کورس کے تمام لیکچر کتاب صیغۃ الی القرآن سے ماخذ ہیں۔ ان لیکچر سے مکمل استفادے کے لیے کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ کتاب لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نمبر کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر سبق کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف اس کی مشق حل کی جائے بلکہ سبق میں موجود تمام تر تراکیب، جملوں اور قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے۔ آج کے سبق میں ہم جملہ فعلیہ کے قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قواعد نہ صرف فعل ماضی معروف بلکہ فعل مضارع معروف کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے، لہٰذا ان قواعد کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ذہن نشین کر لیجیے۔ جملہ فعلیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسا فقرہ جس کا آغاز فعل سے ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ عربی میں عام طور پر جملہ فعلیہ کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آئے گا، فعل کے بعد فاعل ہوگا اور آخر میں مفعول ہوگا۔ اردو میں فاعل کی عام طور پر پہچان یہ ہے کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہو وہ فاعل ہوتا ہے۔ اردو میں عام طور پر مفعول کی پہچان یہ ہے کہ مفعول کے ساتھ کو لگا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں موجود اسم فاعل ہوگا اور وہ اسم جو حالت نصب میں ہو وہ مفعول ہوگا، اور جملہ فعلیہ کا آغاز فعل سے ہوگا۔ جملہ فعلیہ کی پہلی مثال ہے خلق اللہ الانسان۔ اس ترکیب میں خلق فعل ہے اور اس کے بعد دو اسما ہیں اللہ اور الانسان۔ اس جملہ میں اللہ فاعل ہے اور الانسان یہ مفعول ہے۔ وہ اسم جو حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا اور وہ اسم جو حالت نصب میں ہوگا وہ مفعول ہوگا، لہذا اس جملہ میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے اور الانسان یہ مفعول ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگلا فقرہ ہوگا شرب الولد اللبن۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں شریبہ فعل ہے اور الولد کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ فاعل ہوگا، اور اللبن حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یہ مفعول ہوگا۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا لڑکے نے دودھ پیا۔ اگلا فقرہ ہوگا اکل الولد الخبز۔ اس فقرہ کو غور سے دیکھیے، اس میں حالت رفع میں کون سا اسم ہے؟ الولد حالت رفع میں ہے اور یہ فاعل ہے، اور الخبز یہ مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا لڑکے نے روٹی کھائی۔ اگلا فقرہ ہوگا قتل السارق المسافر۔ اس فقرے کا ترجمہ ہوگا چور نے مسافر کو مار دیا۔ اس فقرہ میں قتل فعل ہے اور اس کے بعد
दो अस्मा हैं, अस्सारिक़ु और अल-मुसाफिर। इसमें अस्सारिक़ु हालत रफ़ा में है और अल-मुसाफिरा ये हालत नसब में है। वो इसम जो हालत रफ़ा में होगा वो इसम फ़ाइल होगा और वो इसम जो हालत नसब में होगा वो मफ़ऊल होगा। इस फ़िक्रे का तर्जमा होगा चोर ने मुसाफिर को मार दिया। अगला फ़िक्रा होगा क़तला दाऊद जालूता। इस फ़िक्रा में क़तला ये फेल है, दाऊदू की इराबी हालत क्या है और जालूता इसकी इराबी हालत क्या है, इन दोनों को पहचानिए। इन दोनों में से फ़ाइल क्या है और मफ़ऊल कौन सा है। वो इसम जो हालत रफ़ा में हो वो फ़ाइल होगा और वो इसम जो हालत नसब में होगा वो मफ़ऊल होगा। इस फ़िक्रा में दाऊदू फ़ाइल है और जालूता ये मफ़ऊल है। इसका तर्जमा होगा दाऊद ने जालूत को मार दिया। अगला फ़िक्रा है क़राअत फ़ातिमतुल किताबा। इस फ़िक्रा में क़राअत फेल है, फ़ातिमतु इसकी इराबी हालत क्या है और अल किताबा इसकी इराबी हालत क्या होगी। इन दोनों की इराबी हालत आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका तर्जमा होगा फ़ातिमा ने किताब पढ़ी। इस फ़िक्रा में फ़ातिमा फ़ाइल है और किताब ये मफ़ऊल है। अगला फ़िक्रा है लाइबना फिल मदरसती। इस फ़िक्रा में लाइबना ये फेल है और ये जमा मुतकल्लम का सीगा है। इसका तर्जमा होगा हमने खेला फिल मदरसती। इसका तर्जमा होगा मदरसा में। मुकम्मल फ़िक्रे का तर्जमा होगा हमने मदरसा में खेला। अब हम उर्दू फ़िक्रात का अरबी में तर्जमा करना सीखते हैं। पहला फ़िक्रा है उसने दुनिया और आखिरत का नुकसान किया। इसका तर्जमा होगा खसिरत दुनिया वल आखिरता। अगला फ़िक्रा होगा फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। इस फ़िक्रा में सजदा किया फेल है और फरिश्तों ने ये फ़ाइल है। सजदा किया की अरबी होगी सजदा और फरिश्तों की अरबी होती है अल मलाइकतु। क्योंकि फरिश्ते फ़ाइल है इसलिए अल मलाइकतु हालत रफ़ा में होगा। तो इस फ़िक्रा का तर्जमा बनेगा सजदल मलाइकतु लि आदम। अगला फ़िक्रा होगा मैंने कुरान पढ़ा। पढ़ना की अरबी होती है क़रा और क्योंकि ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है तो इसलिए क़रा से वाहिद मुतकल्लम का सीगा होगा क़राअतु। मफ़ऊल होने की वजह से अल कुरान हालत नसब में होगा कि अरबी होगी क़राअतुल कुरान। अगला फ़िक्रा होगा अल्लाह ने उसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। इस फ़िक्रा में अल्लाह ने फ़ाइल है, उसका सीना ये मफ़ऊल है, खोल दिया ये फ़ेल है। सबसे पहले हम फ़ेल का तर्जमा करेंगे। खोल दिया इसकी अरबी होगी शरह। फ़ेल के बाद अरबी होगी फ़ाइल की और इस जुमला में फ़ाइल है अल्लाह और अल्लाह की अरबी होगी अल्लाहु। और उसका सीना मुरक्कब इज़ाफ़ी है। जब मुरक्कब इज़ाफ़ी मफ़ऊल बनकर आए तो मुज़ाफ़ हालत नसब में होता है तो ये तर्जमा बन जाएगा शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी। अगला फ़िक्रा है हमने कुरान सुना। समिआ का माना होता है उसने सुना। क्योंकि ये जमा मुतकल्लम का सीगा है समिआ का जमा मुतकल्लम का सीगा होगा समिअना। अल कुरान
हालत नसब में होगा, क्योंकि अल कुरान मफ़ऊल है। ये फिक्रा बन जाएगा समिअनल कुरान। के साथ ही आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। आज के सबक में हमने फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल के क़वाइद का मुताला किया। हमने पढ़ा कि जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा और मफ़ऊल हमेशा हालत नसब में होगा। किसी भी जुमला फ़ेलिया में वो इसम जो हालत रफ़ा में होगा वो इसम फ़ाइल माना जाएगा और वो इसम जो हालत नसब में होगा वो इसम मफ़ऊल माना जाएगा। इसके साथ ही आज का सबक ख़त्म करते हैं। जुमला फ़ेलिया के बक़िया क़वाइद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कोर्स के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, आपके लिए सदका जारिया बन सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा। जुमला फ़ेलिया के मज़ीद क़वाइद के साथ अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।